محکمہ ٹرانسپورٹ کی زمینوں پر قبضے کا انکشاف۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جلد قبضہ چھڑانے کا عزم۔ کہتے ہیں کہ زمینوں پر سرکاری اور غیر سرکاری افراد قابض ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRT ریڈ لائن دوبارہ ٹینڈر ہونے کی بات کی گئی تھی، لیکن 8 ماہ کی رکاوٹ کے باوجود دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کی قیمتی زمینوں پر قبضہ مافیا کا راج۔ صوبائی حکومت نے قابضین کے خلاف بھرپور ایکشن کا عندیہ دے دیا۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے سوشل میڈیا ونگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سرکاری زمینوں کو ہر صورت میں قابضین سے چھڑائیں گے۔ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو سندھ کا جائز پانی ہے وہ سندھ کو ضرور ملے۔ ہر پازیٹیو چیز کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں ہم لوگ کوشش کریں کہ اس میں ہم نقص ڈھونڈیں۔ اچھی بات ہے، جتنی زیادہ کلٹیویشن ہوگی اتنا ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ کراچی میں لاتعداد منصوبے زیر تعمیر ہیں۔ BRT ریڈ لائن کا کام 8 ماہ تک روک دیا گیا تھا۔ جب دوبارہ کام شروع کرنے لگے تو کہا گیا کہ دوبارہ ٹینڈر کریں، لیکن ہم نے منصوبہ شروع کر دیا جو اب تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ریڈ لائن کا پروجیکٹ بالکل بند ہو گیا تھا، ایک اینٹ بھی نہیں چلی۔ انفارچونیٹلی مجھے بہت شکایت ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ آپ کا کام الیکشن کرانا تھا، لیکن آپ باقی چیزوں میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، تو کم از کم اس پروجیکٹ کو چلاتے۔ یہ پھر ہم نے واپس آ کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ چلایا ہے، اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس وقت کہ ACS PND جو تھے انہوں نے فرسٹ کیبنٹ میٹنگ میں کہا کہ ریڈ لائن کی ری ٹینڈرنگ کریں آپ، کیونکہ یہ پروجیکٹ نہیں بن سکتا۔ سینئر وزیر نے مزید کہا کہ گن پوائنٹ پر بانی PTI کو رہا نہیں کروایا جا سکتا۔ بشرا بی بی اب سیاست میں آ گئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بانی PTI کو رہا نہیں کروا سکتے۔ اگر وہ کروانا چاہے گا تو بھی خان اتنا غیرت مند ہے کہ بولے گا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کیمرہ مین شاہزیب کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ فری لانسرز ایسوسی ایشن نے غیر رجسٹرڈ VPN پر پابندی کی حمایت کر دی۔ حکومت سے VPN پر رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ایسوسی ایشن طفیل احمد کہتے ہیں کہ VPN فوری بند ہونے سے معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ قانونی VPN بند کرنے کی تیاری۔ فری لانسرز ایسوسی ایشن فیصلے کے حامی رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ صدر پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن طفیل احمد کا کہنا ہے کہ VPN فوری بند ہونے سے معیشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غیر رجسٹرڈ VPN پر پابندی کی تاریخ میں توسیع ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کیونکہ بہت سارے ایشوز اور ہوتے ہیں تو ہم یہ اکنامک اس کا تو مسئلہ آئے گا اگر آپ کا انٹرنیٹ بند ہوتا ہے اور آپ نے رجسٹریشن بھی نہیں کروائی PTA کے ساتھ لسٹ، تو آبویسلی اکنامک امپیکٹ تو بہت بڑا کریٹ ہوگا۔ طفیل احمد بولے 20,000 سے زائد کمپنیز اور فری لانسرز VPN رجسٹرڈ کروا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں غیر قانونی VPN پر پابندی ہے۔ PTA VPN رجسٹریشن میں تعاون کر رہا ہے۔ تو ابھی بھی ہماری اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو ڈیٹس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، بٹ لوگ ابھی تک جو PTA کے مطابق 20,000 سے زائد کمپنیز اور فری لانسرز رجسٹریشن کروا چکے ہیں VPN کی۔ تو PTA نے بارہا ایون کہ ہم سے ابھی جب ملاقات بھی کی تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا، بہت زیادہ وہ ہیلپ فل ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ IP VPN رجسٹر کروائیں ہم سے۔ طفیل احمد نے فری لانسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ VPN کے استعمال کے لیے رجسٹریشن یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین عمران کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ کراچی میں گیس اور بجلی کی قلت نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم بلوں نے شہریوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اسامہ ملک کی رپورٹ۔ کراچی میں گیس اور بجلی کے مسائل برقرار، شہری آج بھی لکڑیوں پر کھانا پکانے پر مجبور۔ شہر کے مختلف علاقے اورنگی، بلدیہ، محمود آباد، لانڈی، کورنگی اور دیگر بجلی اور گیس کے مسائل کی زد میں۔ شہر میں بجلی بندش کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹوں تک جا پہنچا۔ 8.5 گھنٹوں سے زائد گیس غائب رہنے لگی۔ شہری کہتے ہیں گیس کی اچانک بندش اور پریشر میں کمی نے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ بجلی کی متعدد بار بندش سے معمولات زندگی درہم بھرم، بھاری بھرکم بلوں نے کمر توڑ دی ہے۔ لوڈنگ کا جو شہری لوگوں کو واسطے بہت مشکل ہے، گیس لیٹ کرنا تو آتے نہ جاتے بہت مشکل میں ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے کہ شہری لوگوں کے واسطے ان دو چیزوں کا اشد بھی ضرورت، اس کو چلانا چاہیے۔ یہاں پہ بجلی کا اور گیس کا لوڈ شیڈنگ بہت ہے، اور میٹر چیک کرنے والا بھی نہیں ہے، اور آتے کتنا بل بیچتے تو وہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کیا کرے گا۔ گیس کی کافی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری کوئی اتنی تنخواہ بھی نہیں، نہ کوئی ہم ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور ہمیں جو ہے نا جیبوں سے باہر ہوٹل سے لانا پڑتا ہے، تو ہمارے کافی مشکلات ہو رہی ہیں۔
तर्जुमान सुई साउदर्न के मुताबिक गैस की बिला तातुल फरहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जा रहा है। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों में बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग है वहाँ बिजली चोरी और बिल क्लियर नहीं। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। शहर कायद में गैस लोड शेडिंग अपनी जगह, SSGC की जानिब से गैस के लंबे चौड़े बिल भेजने का सिलसिला भी नहीं रुक सका। सुई गैस कोरंगी मेगा सेंटर पर शहरी अपने घरों के बिल दुरुस्तगी के लिए चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अयाज राना की रिपोर्ट। गैस गायब रहने पर भी मीटर चालू, चूल्हा जले या ना जले बिल तो आएगा। कराची वाले गैस के जायद बिलों से परेशान, अवाम SSGC मेगा सेंटर के चक्कर लगाने पर मजबूर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश मामूल। शहरी गैस लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल आने पर बरस पड़े। अवाम का कहना है कि SSGC भारी भरकम बिल भेजने से बाज नहीं आ रहा। एक दफा बिल बन जाए गैस कंपनी वाले बिल कम नहीं करते। बिल कम करने के बजाय किस्तें कर दी जाती हैं। हमारा बिल है 49,000 रुपये। वैसे हम अमूमन आते हैं 800, 900, 1200 रुपये। इस मरतबा 49,000 304 यूनिट आए, जो कि हमारा सिर्फ ऑफिस है, सिर्फ 2 टाइम की चाय बनता है। इतनी बिल आता हमें भरना पड़ता है। यहाँ पे हर महीने चक्कर लगाते हैं लेकिन हर महीने वही बिल आ रहा है, कम कोई नहीं होता है। इतने परेशान होते हैं, परेशान होकर यहाँ पे धक्के खाते हैं। फिर उनका कहना यही होता है कि भाई बिल भरना है आपको। ये परेशानी है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम फिर भी बिल भर रहे हैं। 82,000 का बिल हो गया, हमने भर नहीं सके। 12-12, 15-15,000 कहाँ से भरें। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कम से कम गैस के बिलों में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। लांढी 3 नंबर का पार्क भी उजड़ गया है। खस्ता हाली की दास्तान बयान करता पार्क बल्दियाती नुमाइंदों की नज़रों से ओझल है। पार्क की हिफाजती ग्रिल्स नशे के आदी अफराद तोड़ कर ले गए हैं। कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सैयद नोमान गुल की रिपोर्ट। कराची में उजड़ते हुए पार्क बल्दियाती नुमाइंदों की तवज्जो के मुंतजिर। लांडी टाउन 3 नंबर में कई साल कबल बल्दिया उज़्मा की जानिब से तामीर पार्क ज़ेबो हाली का शिकार। पार्क की हिफाजती ग्रिल्स नशे के आदी अफराद ले उड़े। फव्वारे और बेंचों के पास कचरे के ढेर लगने लगे। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि पार्क 15 साल कबल बनाया गया था। अदम तवज्जो के बाइस पार्क खस्ता हाल हो गया। 10-15 साल पहले तो अच्छा था, ये उसके बाद से जो है ना बिल्कुल ख़राब हो गया। ये इसको कोई ठीक करना नहीं आता। पहले तो आते थे लोग, खेलते हैं स्कूल के बच्चे इधर ही आगे खेलते हैं, आधे 10-15 मिनट के लिए चले जाते हैं अंदर। देखें आबाद कर रहे हैं इसको, है ना, इस पर कोई वो देखभाल नहीं है। इस पर कोई एक बार उजड़ गया तो दोबारा देखते ही नहीं है पलट के। शहरियों ने टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि लांडी नंबर 3 पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ नोमान गुल, सिटी 21। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की बंदिश। गुड्स कैरियर एसोसिएशन रोड्स ब्लॉक करने के लिए माल बरदार गाड़ियों के इस्तेमाल पर नाला है। सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन ने कहा है कि 8,000 से ज़ायद गाड़ियाँ रास्ता बंद करने के लिए पकड़ी गई हैं। गाड़ियाँ मुजाहिरीन के रहम करम पर हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। काविश मेमन की रिपोर्ट। मुल्क में सियासी पारा हाई, एहतजाज के बाइस रास्ते बंद, सड़कें ब्लॉक करने के लिए माल बरदार गाड़ियों का इस्तेमाल, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार मुतासिर। सीनियर नायब सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन सफ़ीर शाहीन ने कहा 8,000 से ज्यादा गाड़ियां मुजाहिरीन के रेमो करम पर हैं। मुल्क भर में सप्लाई चेन मुतासिर होने का खदशा है। 8,000 के करीब जो गाड़ियाँ हैं वो हमारी चौक और चौराहों के अंदर वो उन्होंने रास्ते बंद करने के लिए इस्तेमाल की हुई हैं और वो मुजाहिरीन के रहम करम के ऊपर हैं। और जो मुजाहिरीन आ रहे हैं उनके पास क्रेनें भी हैं, शावल भी हैं और डंपर भी हैं जिनसे वो हिट करके उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी गाड़ियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मलिक शेर खान और दीगर ने हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स के नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा कर दिया। कहा हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। गाड़ियाँ हमारी 16-17 तारीख को पकड़ना शुरू कर दी, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कम से कम 1 हफ्ता हो गया, बिल्कुल कारोबार ठप पड़ा है। उसके ऊपर आप अंदाज़ा ला रहे हैं कि मुल्क के अंदर क्या बहरान मचा हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि शिपिंग कंपनियों का जो रेंट है वो फिल फॉर माफ़ करवाएं और उसके बाद जो गाड़ियाँ पकड़ी हैं उनको, किसी गाड़ी को गुजरांवाला से अटक लेके गए हैं उनको फ्यूल की मद में पैसे दें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कंटेनर्स की मद में यौमिया $3 मिलियन शिपिंग कंपनियों को किराया अदा कर रहे हैं। अगर मुकर्रर वक्त में शिपिंग कंपनी को कंटेनर वापस नहीं करते तो भारी जुर्माने आयद होने का भी खदशा है। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सड़कों और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ
क्रैक डाउन, KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कार्रवाइयां जारी। बंस रोड फूड स्ट्रीट पर मौजूद मुतादिद दुकानों और होटल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट्स हो जाएं होशियार। KMC और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। फूड स्ट्रीट बंस रोड पर कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर व म्यूनिसिपल इंस्पेक्टर नुमान अहमद बोले, मेयर कराची के अहकामात पर कचरा फैलाने वालों को आज नोटिस जारी किए हैं। 3 दिनों में किसी भी किस्म की तब्दीली ना सामने आने पर जुर्माने किए जाएंगे। आज हमने तकरीबन पूरी फूड स्ट्रीट पे हमने नोटिस दिए हैं और उसमें नोटिस में 3 दिन का टाइम होता है कि 3 दिन में ये अपने आप को सेट करें ताकि ये आइंदा फ्यूचर में कोई भी कचरा रोड पे ना रखें। बंस रोड के दुकानदारों का कहना था कि सड़क पर कचरा फेंकने से राहगीरों को मुश्किलात का सामना रहता है। कोशिश है कि कचरा सड़क पर फेंकने से एहतियात करें। नोटिस की बुनियाद पे यही कहा गया है कि आप लोग रोडों पे कचरा ना फेंकें और ये जो कचरा बिला वजह लोग फेंक देते हैं और उसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना होता है, तो उसको समेट के एक जगह पे डाला जाए। जैसे डब्बे हैं इसके डब्बों में डाला जाए तो ये गाड़ियां आके उठा के लेके चली जाती हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सड़क और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 साल कैद की सजा सुनाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हो सकीं। कराची में 500 वाला मोबिल ऑयल का डब्बा 700 रुपये में फरोख्त हो रहा है। ऑयल सिंध लिब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद अमीन ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मनमानियां जारी हैं। मुनाफे का मार्जिन का कोई तयन करने वाला नहीं है। अयाज राना की रिपोर्ट। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता, शहरी महंगी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने पर मजबूर। कराची में 500 वाला मोबिल ऑयल का डब्बा 700 रुपए में मिलने लगा। ऑयल सिंध लुब्रिकेंट डीलर एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन जाहिद अमीन का कहना है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मनमानियां जारी हैं। उनके मुनाफे का मार्जिन का कोई तयन करने वाला नहीं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम भी हो जाएं, उसकी मसनूआत की कीमतें कम नहीं होती। चेक एंड बैलेंस नहीं, बुनियादी वजह ये है अपना, और दूसरा गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट आना चाहिए। जो इंटरनेशनल मार्केट में आप पढ़ते होंगे क्रूड ऑयल का रेट आज इतना कम हो गया, आज इतना, लेकिन उस इम्पैक्ट से कम होता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब बढ़ता है ना क्रूड का तो वो उसका इम्पैक्ट फौरन आता है हमारी मार्केट में। शहरियों का कहना है 500 वाला ऑयल का डब्बा 700 रुपए में मिल रहा है। हर माह ऑयल तब्दील करवाना मुश्किल हो गया है। सन 88 में मेरे वालिद साहब ने जब गाड़ी ली थी तब ये डब्बा 35 रुपए का था और आज ही मैं डब्बा ले रहा हूँ 6000 रुपए का। बाइक का ऑयल पहले हम चेंज कराते थे, हर महीने चेंज कराते थे, हमें 500 का पड़ता था, 450 का। अब ये इतना महंगा हो गया कि इसकी कीमत 700 तक जा पहुंची। अब 2-2, 3-3 महीने बाद हम चेंज करवा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि जब पेट्रोल सस्ता करते हैं तो उसकी मसनूआत की कीमतों में भी कमी करने के लिए इकदाम किए जाएं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में केसेस की समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट की आइनी केसेस की समाअत से मुतालिक अबूरी इख्तियार की मुद्दत खत्म। हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार हो गई। पासपोर्ट जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत दायर इख्तियार की बुनियाद पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक नई हिदायत नहीं आती हम आइनी दरख्वास्त नहीं सुन सकते। M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फरहमी से मुतालिक केस अदालत ने दायर इख्तियार की बुनियाद पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने ऑर्डर लिखवाने के दौरान दरख्वास्त गुजार के बोलने की कोशिश पर अदालत ने बरहमी का इजहार कर दिया। कयूमाबाद में चिल्ड्रन पार्क पर गैर कानूनी तामीरात अदालत ने प्लॉटों की हैसियत से मुतालिक KMC का नोटिफिकेशन तलब कर लिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस साबिक SSP मलिर राव अनवार व दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलों के समाअत अपील कुनंदा और मुल्जिमान के वकील अदालत में पेश न हो सके। डकैती और लूटमार केस अदालत ने अदम हाजिर गवाहों की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत में अब तक पेश न होने वाले गवाहों के नाकाबिले जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। लापता अफराद केस में CTD की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर अदालत बरहम। अदालत का होम सेक्रेटरी से भी जवाब तलब कर लिया। अरशद पप्पू कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम जुबैर बलोच की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुल्जिम को 2 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। धमाका खेज मवाद बरामदगी केस अदालत ने मुल्जिम अशरफ को मजमूई तौर पर 28 साल कैद की सजा सुना दी। 14 साल इंसदाद दहशतगर्द एक्ट जबकि मजीद 14 साल धमाका खेज मवाद पर सजा सुनाई गई। अदालत ने मुल्जिम पर मजमूई तौर पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया।
گہرے سمندر میں جانے والی بڑی کشتیوں میں سیٹلائٹ آلہ لگانے پر اتفاق 35 کشتیوں میں VMC تنصیب کرنے کے لیے سندھ حکومت نے 30 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ ماہی گیری کے صوبائی وزیر محمد علی ملکانی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ صوبائی وزیر ماہی گیر محمد علی ملکانی کی زیر صدارت اجلاس بلایا گیا، جس میں محکمہ فشریز کے دونوں ڈائریکٹر جنرلز اور ڈائریکٹرز نے حصہ لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ آئندہ سال 3500 رجسٹرڈ کشتیوں EMS کی تنصیب شروع کی جائے گی۔ ویسل مانیٹرنگ سسٹم سیٹلائٹ آلہ ہے۔ گہرے سمندر میں ماہی گیروں کی کشتیوں سے رابطے کے لیے VMS تنصیب کی جائے گی۔ وفاقی حکومت کے فیصلے پر سندھ حکومت عمل کر رہی ہے۔